Hello students, so welcome back once again to electrochemistry chapter. Now the last two sessions of the electrochemistry wherein the conceptual part of electrochemistry will get over. Alright, so till now we have talked about electrolytic cell, the second part of the chapter, in which we have covered the electrolytic conductance part with Colroche law. In today's class we are going to talk about इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, राइट. सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज द सेल विच इज गोइंग टू कन्वर्ट योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. ये हम सब जानते हैं, बहुत लेक्चर्स हो चुके हैं एंड वी हैव नोन दैट दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोलिटिक सेल डज. एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल uses direct redox reaction, right? So basically we input electrodes into a single solution and we pass electricity with the help of external source where that electrolyte undergoes a direct redox reaction. Everybody knows that, right? The next term that comes on the screen is electrolysis. Now electrolysis is a very important term, but before that I am Manjot Singh, the host for today's lecture, your teacher for explaining what electrolysis is. Now, let's understand what electrolysis is. Electrolysis is basically made up of two words, that is nothing but electro and lysis. Lysis का मतलब होता है to kill. हाँ, ये वो kill वाला kill नहीं, basically केमिस्ट्री में kill का मतलब है to decompose. That is what is the meaning of lysis, and that's why I have colored them differently, so that whenever you sit in your exams you have this click in your mind that electro was different word, lysis was different word, and they are combined together. So basically when you decompose a compound making use of electricity तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, करेक्ट. और इस चीज को करने के लिए हम एक बहुत स्पेशल सेल का यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, करेक्ट. दिस इज हाउ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल लुक्स लाइक, जिसके अंदर एनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है और एक एक्सटर्नल पावर सोर्स है. एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू हैपन, डू नॉट फॉरगेट दैट. कैथोड इज वन ऑन विच रिडक्शन इज गोइंग टू हैपन. अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है इसके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. तो जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट को एक सोल्यूशन के फॉर्म में लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में घूम रहा होता है, और जब आप एक एक्सटर्नल सोर्स से इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये नेगेटिव वाले जो आयंस हैं वो सब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे, और जो ये पॉजिटिव वाले आयंस हैं वो सब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भागेंगे. And what will happen? Why are they running? Because they want to basically discharge their negative part, है ना. For example, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, NaCl, Na प्लस Cl माइनस. तो Na प्लस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहा है, Cl माइनस जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ भाग रहा है. और क्यों भाग रहा है? उसका रीजन है कि भाई ये पॉजिटिव आयन अपना पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्चार्ज करना चाहता है. इट वॉन्ट्स टू गेट रिलीव्ड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, एंड वंस इट डज व्हाट हैपेंस इज दैट Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज हाउ इट डिस्चार्जेस इट्स आयन, डिस्चार्जेस इट्स चार्ज बेसिकली, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एलिमेंटल फॉर्म. परफेक्टली ओके. सो बेसिकली आपने डाला था NaCl, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू एक्चुअली कन्वर्टेड दिस इनटू Na and Cl2, where this reaction will happen on cathode. Why? Because this is the reduction reaction, and Cl minus going to Cl2 releasing 2 electrons will happen on anode. Why? Because this is the oxidation reaction. Perfectly okay. So anode, cathode, oxidation, reduction.
but the polarities are exactly reverse of that of galvanic cell. So please make sure that you are extremely clear with this part. All right, let's understand the definition of electrolysis. The word electro means electricity and lysis means kill, decompose. It is the phenomenon of separating a compound into its participating or constituent elements by passing an electric current, जो कि मैंने आपको अभी समझाया. But the question is कि सर गैल्वेनिक सेल का तो हमने यूज देखा कि सर एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम बहुत जगह पे कर रहे हैं. In our commercial life, we are using that electricity in various other forms. But what is the use of electrolysis? Why do we need to do this? The reason is this. This electrolysis part is used for extraction and refining of various metals. It is used for production of chemicals. It is used for electrolytic reduction of metals from their compounds. जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसको हम मेटलर्जी के नाम से जानते हैं. पूरा का पूरा चैप्टर, उसके अंदर काफी सारे मेटल्स ऐसे होंगे जो हम इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके उनको उनके मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट करेंगे. इज दैट क्लियर? सो दैट विल बी डन इन दैट पार्ट. इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग आपने नाम सुना ही होगा. सो दीज आर द यूजेस बेसिकली which are actually more uses than the galvanic cell. So commercially इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस करवाने वाला जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है. हमको ऐसा लगता है कि उसका कोई यूज नहीं है, बट it has a wide range of applications around us. Is that clear? So this is basically what electrolysis is. Now what we need to understand in this electrolysis कि सबसे पहली चीज़ कि सर अगर मैंने यहाँ पर एक NaCl का सोल्यूशन लिया है, एक्वस सोल्यूशन, तो मेरे एनोड एंड कैथोड पे क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे? पॉइंट है. दूसरा चीज जो मुझे सीखना है कि सर कितना अमाउंट ऑफ करंट मैं पास करूं ताकि द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ Na एंड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ Cl2 मुझे मिल जाए. सो बेसिकली द फर्स्ट रिलेशन ओवर हियर आई वुड से that it is a qualitative relation, जहां हम सिर्फ इतना समझेंगे कि अगर आपके पास ये सोल्यूशन है और ये इलेक्ट्रोड्स हैं तो एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट्स ये होंगे. एंड इन द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू क्वांटिफाई दिस रिलेशन. वी आर गोइंग टू क्वांटिफाई दिस रिलेशन. परफेक्टली ओके? सो टू पार्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस विल डिवाइड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो पहले पार्ट में हम क्वालिटेटिव पार्ट शुरू करते हैं. इज दैट ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग बट प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. करेक्ट? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. हम क्वालिटेटिवली समझना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और उसमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है तो उसके प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होंगे, बेसिकली एनोड और कैथोड पे बनने वाले प्रोडक्ट्स क्या होंगे. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट विद दिस टॉपिक. ऑलराइट, सो लेट्स ब्रिंग अबाउट एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल once again and let's try to take an example of the simplest electrolyte we know, that is water, H2O, which contains two ions, that is H plus and OH minus ions. correct? जैसे ही आपने इसके अंदर एनोड और कैथोड डाला, सो H प्लस OH माइनस एंड यू पास एन इलेक्ट्रिसिटी, तो H प्लस आयंस कैथोड की तरफ भागेंगे, OH माइनस आयंस एनोड की तरफ भागेंगे और कैथोड पे जाके ये H प्लस आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और H में कन्वर्ट हो जाएंगे, which does not remain as H, it converts to H2, so hence 2H plus taking 2 electrons going to H2. correct? Similarly एनोड पे OH माइनस आयंस जिसके अंदर O is at -2 state and H is at +1, एंड सिंस एनोड पे ऑक्सीडेशन होने वाला है तो -2 वाला ही ऑक्सीडाइज हो सकता है. हाइड्रोजन तो अपनी ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, तो ये OH माइनस जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू O2, -2 से 0, एंड सिंस O2 so 2OH minus which releases 2H plus and
1 O इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 O 4 इलेक्ट्रॉन्स देंगे, और यही H प्लस है जो कैथोड पे जाके रिडक्शन करता है. सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. करेक्ट. तो जब तक हम प्योर सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर यू पीपल ओवर हियर, दैट इज NaCl. इस NaCl को मैं मोल्टन फॉर्म में लेके गया. मोल्टन फॉर्म में क्यों ले जाना जरूरी है? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है. सॉलिड फॉर्म में आयोनिक सब्सटेंसेस डू नॉट कंडक्ट. तो मोल्टन फॉर्म में ये Na प्लस और Cl माइनस में ले गया. तो कैथोड पे Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग टू Na, एंड एनोड पे Cl माइनस 2 Cl माइनस टेकिंग अप 2 Cl माइनस, very very important, 2 Cl minus going to Cl2 releasing 2 electrons. So basically when there are pure substances then there is no problem in products of electrolysis. साफ साफ दिखता है हमको कि हाँ भाई NaBr है, CuSO4 है, मोल्टन फॉर्म में है, तो कैथोड पे कॉपर रिलीज होगा और एनोड पे सल्फेट में से ऑक्सीजन रिलीज होगा, वो हमें दिख रहा है. बट व्हेन देयर इज मिक्सचर ऑफ आयंस, जब हम मिक्सचर ऑफ आयंस लेते हैं तब दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर, a very very simple example that I have over here, NaCl, और उसका aqueous form है मेरे पास, not the molten form, aqueous form. तो उस केस में मेरे पास Na प्लस आयन है and H प्लस आयन्स है from water, and similarly Cl माइनस आयन्स from NaCl and OH माइनस from H2O. तो कैथोड के ऊपर मेरे पास जो रिएक्शन होगा वो हो सकता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग टू Na, या फिर twice of H plus taking 2 electrons going to H2. This is the possibility at cathode. Similarly, if I say the possibility at anode, then the possibility at anode I can see that 2 Cl minus going to Cl2 releasing 2 electrons, and twice of OH minus going to O2 plus 2H plus 4 electrons. So this becomes very very important कि अब इन दोनों रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन जो है, कोई एक ही रिएक्शन हो सकता है, कैथोड पे भी कोई एक ही रिएक्शन हो सकता है, एनोड पे भी कोई एक ही रिएक्शन हो सकता है. सो टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कैटायंस हैं ये एक्चुअली कैथोड पे जाके अपना जो चार्ज है वो डिस्चार्ज करते हैं, राइट? यू कैन सी दैट cations discharging their charge at cathode, similarly anions discharging their negative charge at anode. तो बेसिकली ये क्यों डिस्चार्ज कर पा रहे हैं? बिकॉज इस डिस्चार्ज को करने के लिए एक पोटेंशियल यूज हो रहा है जिसको हम डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं. फॉर वेरी सिंपल लैंग्वेज, सिंस कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड पे जो डिस्चार्ज पोटेंशियल यूज होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिस्चार्ज पोटेंशियल, और एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन डिस्चार्ज पोटेंशियल. वेरी सिंपल, वेरी इजी. अब क्वेश्चन है कि कैथोड पे इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा और एनोड पे इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन होगा. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, लेट्स गिव यू अ ब्लैंक स्क्रीन ओवर हियर. कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है वो है Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गोइंग टू Na, या फिर ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गोइंग टू H2. एंड सिंस दोनों का रिडक्शन हो रहा है तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल देख लो भाई, ये है -2.81 वोल्ट और ये है 0 वोल्ट. तो दोनों में से जो हायर होगा वो ही आयन जो है अपना डिस्चार्ज कर पाएगा. सिंपल सी लैंग्वेज है. सो ओवर हियर हाइड्रोजन हैज द हायर पोटेंशियल, हेंस कैथोड पे हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, दैट इज नथिंग बट हाइड्रोजन गैस. सिमिलरली एट एनोड वी हैव Cl minus 2 Cl minus going to Cl2 plus 2 electrons, and OH minus twice going to O2 2H plus 4 electrons.
जिसमें इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -1.36 एंड इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज -1.23. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिमेंबर दीज आर द रिएक्शंस हैपनिंग एट एनोड. तो दोनों में से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका हायर है भाई? OH का. नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी वो हायर, सो हेंस O2 रिलीज होना चाहिए था, है ना. लेकिन क्या होता है, कुछ आयंस ऐसे होते हैं जिनका थर्मोडायनामिकली, बेसिकली थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड जो वोल्टेज होता है वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ट्रू नहीं होता. एक्सपेरिमेंटली वो थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज मांगते हैं टू डिस्चार्ज देयर चार्ज, एंड दैट इज व्हाट इज द केस विद OH माइनस आयन. ये OH माइनस O2 में रिलीज होने के लिए थ्योरेटिकली वैल्यू -1.23 है, बट जब एक्सपेरिमेंटली हम करने जाते हैं तो पता चलता है कि इस वोल्टेज से थोड़ी सी वोल्टेज ज्यादा चाहिए इसको, एंड दैट लिटिल वोल्टेज which is required higher than the theoretical value, उसी वोल्टेज को नाम दिया जाता है ओवर वोल्टेज. उसी वोल्टेज को नाम दिया जाता है ओवर वोल्टेज, एंड दैट्स द रीजन, दिस ओवर वोल्टेज इज द रीजन कि जब आप एक्वस NaCl को इलेक्ट्रोलाइज करते हो तो एनोड पे रिलीज होना चाहिए था O2 थ्योरेटिकली, बट होता है Cl2 एक्सपेरिमेंटली. Why? Because OH minus requires this over voltage, and that's the reason with OH minus there are certain ions which gets oxidized instead of OH minus. Getting the point? So this becomes very very important to understand कि sir what are the factors which affect the products of electrolysis, which affects the products of electrolysis. Very very important, ध्यान से समझिएगा. पहला फैक्टर, the first factor is nothing but nature of electrolyte. Nature of electrolyte. Now we know electrolysis involves movement of ions, right, towards the oppositely charged electrodes. Now naturally electrolyte should have mobile ions. In solids, ions are in specific positions and cannot move at ordinary temperatures. Hence, solids are unsuitable for electrolysis. So, we create aqueous solutions of those solids. Getting the point? And the easier the solids can break into its ions, the better the products of electrolysis. Then second factor we talk about is nothing but the nature of electrodes. हाँ जी बिल्कुल, इलेक्ट्रोड्स भी दो तरीके के होते हैं मेरे बच्चे. एक जिनको हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दूसरा जिनको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में आपके प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिफरेंट रहते हैं, और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे. A very simple example over here I will take, जिसमें I will take a electrolytic cell जिसके अंदर हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है. Now there is cathode, there is anode पॉजिटिव, तो कॉपर +2 आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा. सो कैथोड पे कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर में कन्वर्ट होना चाहेगा. सिमिलरली H+B 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके H2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, जिसमें reduction potential of copper is +0.34 volt and hydrogen is 0 volt. So copper wins the race, and hence cathode के ऊपर आपको यहाँ पर in the case of copper sulfate solution copper का deposition मिलेगा. And in case of anode you have two ions, SO4 2- and OH-, where SO4 2- is a very heavy ion, and hence undoubtedly OH- wins the race. Yes, including the over voltage, OH- wins the race. So एनोड के ऊपर O2 रिलीज हो जाएगा. सो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तब होंगे जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, लाइक प्लैटिनम, गोल्ड एक्सेट्रा. बट व्हेन यू आर यूजिंग अ एक्टिव इलेक्ट्रोड, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एनोड और कैथोड दोनों कॉपर मटेरियल के ले लिए, तो अब होगा क्या,
कि कॉपर पे, एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शंस जो हैं वो अलग हो जाएंगे। कैसे अलग हो जाएंगे? कैथोड पे जो है वो तो कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा है, बिकॉज वहां पर तो रिडक्शन हो रहा है और रिडक्शन जो है वो कॉपर जीत रहा है। लेकिन एनोड पे OH माइनस के ऑक्सीडेशन के अलावा एक और प्रोसेस पॉसिबल हो सकता है जिसमें कॉपर कैन गो टू कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इट इज एन एक्टिव इलेक्ट्रोड, so it can also react in the reaction, and hence we see that oxidation potential of this is minus 0.34 volt. reduction plus 0.34 है ना, अभी लिखा था देखो, तो ये minus 0.34 and which is higher than OH minus ions electrode potential, and that's the reason that copper on the anode starts to release copper +2 ions and धीरे धीरे ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और उतना ही कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। एंड दिस फिनोमिना इज नोन टू बी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चे? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इज दैट क्लियर? हमने बेसिकली इम्प्योर कॉपर का एनोड लिया और उसमें से कॉपर आयंस को एक्सट्रैक्ट कर लिया और प्योर कॉपर आयंस को सॉल्यूशन में से डिपॉजिट करवा दिया ऑन द कैथोड पार्ट, एंड स्लोली विद टाइम एनोड में से सारा कॉपर निकल के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। सो वी गेट अ प्योर कॉपर रॉड ऑन कैथोड साइड। सो दिस इज हाउ यू इलेक्ट्रोलिटिकली रिफाइन सर्टेन मेटल्स। इज दैट क्लियर? फिर बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आने जा रहा है, एंड दैट इज नथिंग बट कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। यस, सिंपल है कि सर कंसंट्रेशन की बात आप कर रहे हो तो कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, फॉर एग्जांपल मैंने NaCl का डाइल्यूट सोल्यूशन लिया है, इट्स वेरी वेरी डाइल्यूट, तो उस केस में मेरे पास है Na+H+ and OH minus and Cl minus. But since Na+ is in very less quantity and Cl minus is in very less quantity, so water के ions they dominate in the reaction and anode के ऊपर O2 and यहाँ पर H2. But the moment you make a concentrated NaCl solution, in that case Cl minus overpowers OH minus. And since OH minus requires over voltage, it requires over voltage, and therefore Cl2 wins the race at anode. कैथोड पे तो बहुत लार्ज डिफरेंस है Na+ और H+ के बीच में, तो H2 ही बनता है वहां पर, डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो। बट एनोड पे कंसंट्रेशन की वजह से रिएक्शंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। So these are the factors basically which affect your products of electrolysis. Is that okay? So the question arises कि सर क्या हर बार हमको पोटेंशियल्स देखने पड़ेंगे? क्या हर बार हमको पोटेंशियल्स को याद करके प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे? द आंसर ओवर हियर इज नो। हम आपको एक ट्रिक दे देते हैं। टू डू सो लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड एंड गिव यू अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज नथिंग बट द सीरीज ऑफ cations and anions. Now the series of cations is in the increasing order of reduction potentials, and series of anions is in the increasing order of ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो बहुत सिंपल सी बात हो जाती है कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया मैंने प्लैटिनम, और जिंक सल्फेट का क्या करवाने का, एक्वस जिंक सल्फेट सोल्यूशन का मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। आई टेल यू व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कैथोड एंड एनोड पे। तो व्हाट सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दिस सीरीज कि भाई पहले तो आयंस देख लो, मेरे पास Zn+2 H+, SO4 2- एंड OH-। इन दोनों में से जीतने वाला आयन H+, सो हेंस कैथोड पे H2 रिलीज होगा।
इन दोनों में से जीतने वाला आयन OH माइनस, देखो इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, तो एनोड पे बेसिकली जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिलीज होगा, और कैथोड पे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिलीज होगा. सो OH minus being having higher oxidation potential, it will release O2. So the products of electrolysis of a zinc sulfate aqueous solution are H2 and O2 at cathode and anode respectively. Similarly, अगर आपको पूछ लिया जाए कि भाई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, यू हैव अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन aqueous, इसके प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताओ, तो वंस अगेन द आयंस कॉपर +2 NH+, दोनों में से जीतने वाला कौन? कॉपर. देखो H+ से ज्यादा है, सो कॉपर विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग एट कैथोड. एनोड, एनोड के ऊपर OH माइनस आयन एंड SO4 माइनस आयन, तो OH माइनस विजेता, सो इट विल रिलीज O2. दिख रहा है सीरीज में से. सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली रिमेंबर दिस सीरीज. लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर. इसमें मैंने ओवर वोल्टेज वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दिया है, सो यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर कि किसके लिए ओवर वोल्टेज लगेगा, किसके लिए नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला aqueous NaBr solution, aqueous NaBr solution. So what you have to do is simply see Na plus H plus Br minus OH minus. इन दोनों में से जीतने वाला आयन H plus. देखो H plus का बहुत ज्यादा है कंपेयर टू Na plus. So H2 will release at cathode. एनोड के ऊपर Br minus and OH minus में से कौन जीता? Br minus. तो भाई ब्रोमीन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा. So this is basically the series which if you remember your products of electrolysis 2 marker question is sorted, and आपकी NCERT end exercise में the last question is based on this, जिसमें you have to take care कि अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं तभी ये सीरीज जो है वो कामयाब है. अगर आपके पास कॉपर है, सिल्वर है या जिंक इलेक्ट्रोड्स हैं तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हो जाते हैं. तो इन दैट केस आपका जो कैथोड वाला प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा. सपोज मैंने बोला कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो कैथोड पे तो कॉपर ही बनेगा, लेकिन एनोड पे कॉपर +2 आयंस निकलेंगे, O2 रिलीज नहीं होगा. इज दैट क्लियर? सिमिलरली मैंने बोल दिया सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स अगर है तो सिल्वर का H+ से ज्यादा है तो कैथोड पे तो सिल्वर डिपॉजिट होगा और OH माइनस, तो O2 ऑन एनोड. लेकिन अगर यही चीज सिल्वर इलेक्ट्रोड्स यूज करके की जाए, सिल्वर बीइंग एन एक्टिव इलेक्ट्रोड, एनोड पे भी सिल्वर आयंस निकलेंगे और कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. सो this series will help you to get your products of electrolysis in your examinations. So this is the qualitative part of understanding electrolysis. अब ये तो पता चल गया कि प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, लेकिन कितने बनेंगे, हाउ मच, by passing how much electricity. That was the important part, and that we are going to take up in the next lecture, that is quantitative aspect of electrolysis. So thank you very much for keenly listening to me. We'll meet up in the next session. Take care. Bye-bye.